I'm sorry, I just get a call. So the major thing is because of like our generation, Gen Zs, we have a lot of information. The problem with us, we are so much confused, yet we are so much feels like incapable. And As of like I've like studied a lot of the personal curiosity books. I just tell every book the name, which is personal curiosity book. As of in my 2023 era, I was a honey who was just being validated by her parents or just being validated by her friends if she is a smart student, if she get a really good percentage. That's the only one thing I've been validated about. And as a human being, we need validation a lot. We need love a lot. We crave love a lot. We just love the, we want love a lot. Love is the only way to live life. If my parents doesn't love me, I would never live my life the way I'm doing. Love is the only one thing that humans crave for the most. I crave validation, love a lot. So my parents used to tell me, if you like going to get 80%, we are so proud of you. We are so, I mean, you are such a nice girl, and all of the things which doesn't define myself, it's all of the thing is going to be defined by my marks. At this moment, I was not so much mature like that, but yeah, I've get 80%. I've got award, and I'm happy. Okay, but as of I come in the college, some of the people, whenever I've come in the 10th, actually I passed 10 in a COVID, so it was not considered as a, मेहनत करके like marks लिए हैं. It was just कि like COVID की वजह से marks दे दिए ऐसा करके. It was like passing marks we've get. I still got an 80% in 10th also, but the major part is that when I come in 10th, I've like given up my all. क्योंकि ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम्स नहीं ली जाएगी, क्योंकि मेरा हमेशा से यही इनिशिएटिव था कि अगर कभी भी एग्ज़ाम ली जा रही है तो आई वुड बी लाइक, मतलब मैं फुल प्रिपेयर थी कि एग्ज़ाम ले या ना ले. आई वॉज टोटली प्रिपेयर कि ले तो आई वुड बी एबल टू गिव द एग्ज़ाम रियली गुडली ऐसे. सो पीपल आर यूज्ड टू टेल मी कि वंस टू 10th एंड देन लाइफ में मज़े ही मज़े. I was like, okay, let's just believe on them, because 10th standard honey doesn't know that you have to believe in people's thoughts. मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, क्योंकि तब मैं आई वॉज नॉट मैच्योर इनफ कि मैं खुद के डिसीजन खुद ले सकूँ. इस वजह से मैं हमेशा लोगों की बातों पे ही ध्यान देती थी. आई वॉज लाइक, दे आर टेलिंग मी कि एक बार 10th कर लो, देन मजे मजे, तो देन मजे मजे. ऑफकोर्स 10th के बारे में मजे थे. 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी ज़्यादा हमने मजे किए, बिकॉज देर इज़ नॉट अ बोर्ड इन दैट, राइट. We did fun, we grow a lot in 11th standard a lot. उसके बाद I did 12th. Same people who are telling me that you're gonna have मजे मजे in 10th standard, now the same people are telling me that you have मजे मजे after 12th standard. And I was like, okay, let's just give it a chance to. I was a little bit mature, because in 10th standard I was like 16 or 17. Any teenager who is exploring themselves in a teenage, because I have my little sister, she is just like 12 years old. She doesn't even know when to eat, what to eat. I was the one who is provider. मतलब मैं उसको बोलती हूँ कि तू खा ले, तू सो जा, उसको कुछ समझ में नहीं आता है. I was the one who is telling everything to her. So she is like my children, ठीक है. तो उसको नहीं पता चलता. But once she hit the teenage age, she is exploring her anger, she is exploring her emotions, she is asking herself कि why am I being angry. अभी वो गुस्सा होती है तो वो बस गुस्सा होती है, उसको पता है कि दीदी ने आइसक्रीम नहीं दिलाई, तो लाइक आई एम एंग्री, दैट्स इट. बट शी इज़ नॉट अवेयर दैट वाई एम आई एंग्री. और जब वो वाई वाला फेज होता है ना, आई ऑल्सो हैड दैट वाई वाला फेज. एंड टू बी ऑनेस्ट, I like sometimes wants to thank God that I got that phase of why, because I'm going to ask everything. Why am I being angry? Why am I being happy? What are the things make me feel good? What are the things make me feel bad? The things which make me bad, just put out of my life. What are the things making me happy? Just have to have more of that things. So इतनी तो मेरे को मैच्योरिटी आ गई थी 12th तक कि like I know what I like and I know what I don't like. I know what I have to sacrifice. I know what I don't have to sacrifice. तो मेरे को ऐसा था. तो
ट्वेल्थ के बाद कॉलेज में तो ब्रो जो मैच्योरिटी हिट हुई, क्योंकि माई कॉलेज वॉज लाइक सो दूर था मेरे घर से, बट इट वॉज ऑल न्यू प्लेस। लाइक तुम इतने से लाइक इतने एरिया में तुम बड़े हुए हो, इतने ही एरिया में रहो, एंड सडनली यू विल सी अ वर्ल्ड, न्यू पीपल ऑफ कॉलेज, लाइक फ्रेंड्स, प्रोफेसर एंड ऑल. लाइक it was amazing experience. I've like lived there and I feel like, oh my god, there is a so much than I can thought of. मतलब मैं जो इतनी मार्क्स की जो उसमें रहती हूँ ना, मैं इतना जो मार्क्स में रहती हूँ, मार्क्स आ जाए जीत गए, मार्क्स आ जाए जीत गए. There is so much in the world. There is politics, there is economics, there is how the world works, there is how stock market works, there is how business works, there is how money works, there is how power works, there is how human nature works, there is how neuropsychology works, there is how social work, that is how we've evolved. I was so much curious about the things, and I was so much happy that I have to absorb all the curiosity of me to be filled by books. I've read a lot of books on human nature, on human psychology, on self-help. I read a lot of book on self-help. I read a lot of book on how the world works and how the world works before. I read history a lot. I've like, being a person who can have their own opinion on anything. If somebody gonna come and gonna ask me like, what about HDFC shares, it was just IPO release, did you get that or not, I was like, I have to have this opinion कि भाई ये किस बारे में बात कर रहा है, IPO क्या है, शेयर क्या है. then I have to like have like 360 नॉलेज होना चाहिए. तुम्हें जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में, बिजनेस के बारे में, तुम्हें इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, तुम्हें रिलीजन के बारे में पता होना चाहिए, तुम्हें सब. बेसिकली यू हैव टू हैव अ 360 व्यू. कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट होता है ना, उसको हमेशा 360 नॉलेज होता है. मतलब उसको यूपीएससी का जो सिलेबस है, मैं नहीं कह रही कि वो आउटडेटेड है और मैं कुछ भी नहीं कह रही उसके बारे में. इफ़ यूपीएससी बुक्स आर स्टिल रिलेवेंट है, मतलब उसमें जो नॉलेज है जो लोगों को आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनाता है, कि उनको जो भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट क्या जाके बनेगा, आईपीएस ऑफिसर. एंड व्हाट आईपीएस ऑफिसर डू, दे हैव टू टेक द डिसीजंस फॉर द कंट्री ना. सो एक जो भी कोई बंदा है जो कि सिलेबस पढ़ रहा है, उसको एक्चुअली में पता होता है कि अब तक दुनिया में क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है. बेस्ड ऑन दैट दे हैव टू टेक सर्टन डिसीजंस फॉर द लाइक कंट्री, राइट. जैसे निर्मला जी है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला. सो शी इज़ लाइक स्मार्ट इनफ टू टेक द होल कंट्रीज, शी कैन मेक द होल कंट्रीज बजट, she can make the whole country's like tax system she is making, and it's just so hard. मतलब तुम कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तुम्हें टैक्स रखना होता है, फिर तुम्हारे परचेजिंग पावर को देखना होता है, फिर फ्यूचर ट्रेंड्स को देखना होता है, उस हिसाब से टैक्स तुम्हें करना होता है. और इट्स जस्ट नॉट सो ऐसे हार्ड, इट्स जस्ट नॉट सो ईजी. मतलब हाउ कैन यू एक्चुअली, टैक्स इज समथिंग आई एम रियली kind of person. I have to learn that more, because how it's work and why it's work, I'm still someone who is curious about how taxes works. But to be honest कि हिस्ट्री से लेकर अभी तक जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स बने हैं, चाहे वो इंडिया के लिए हो, चाहे वो वर्ल्ड के लिए हो, वर्ल्ड लॉ ऑर्डर हो, कैसे लाइक ट्रेड साइकिल, ट्रेड यूनियंस वर्क करते हैं, कैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, कैसे यूनियन डिसीजंस और यूनियन रिलेशनशिप्स मैटर करती है, क्यों होता है वो सब. सो आई एम लाइक सो मच curious about all these things, to be honest, how all these things work, what are the power do people have that controls the world. It's not like कि किसी एक बंदे के हाथ में तो है नहीं कि भाई यही हम ही दुनिया चला रहा है, इल्यूमिनाटी. तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना. दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. इट्स लाइक, and I've like read a lot of books based on histories, economies, based on countries has corrupt, based on how a trend has gone, based on the wars, World War I, World War II. I've like read a lot, and that was such a good thing, because I had
the one thing which I had, which is a spark of curiosity inside me, and then I read a lot of books. Such a good thing that I have, which is curiosity, and because it was so much natural curiosity, if you ask me anything about whatever I've read, I can literally give you answer. I don't even have to memorize it. It was so natural for me because I'm naturally curious. I'm naturally consuming the knowledge what I want, and if anybody gonna ask me about the knowledge, I would naturally gonna say because it's so natural. मेरे को ऐसे रट्टा मारना नहीं पड़ रहा. मेरे को 80% लाने हैं, I just have to रट्टा मारिंग that, and that was so like bad thing. मुझे मैं बड़ी हुई उसके बाद मुझे पता चला आई लाइक गिवन अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब मैंने कितना सारा मेरी ज़िंदगी का टाइम दे दिया है सिर्फ किताबों में. बिकॉज आई एम सच अ नर्ड. I cannot say that I'm nerd. I'm such a funny person also, but I'm such a considering myself nerd क्योंकि मेरे 80% आए हैं dude, and I'm considering myself as a nerd because I'm not that kind of person कि भाई जितने भी मार्क्स आए मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार. Whatever 45-50%, no. I've like given a lot of time with books just because I can get a validation of my parents and friends on the surrounding my dadi and all, just because I considered myself as a smart person in the samaj or world, whatever. But after I get the knowledge, I feel like that it was waste of time. I would not say it was waste of time. I would say क्योंकि मैंने ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, मुझे ये समझ में आता है कि जस्ट बिकॉज मेरी कुछ इंटरनल नीड्स थी टू बी वैल्यूड पर्सन इन सराउंडिंग, टू बी वैल्यूड पर्सन, उसकी वजह से मैंने बहुत सारा टाइम दिया उन चीज़ों में जो शायद मुझे कभी पसंद नहीं थी. क्योंकि पढ़ना एक ऐसी चीज़ था मेरे लिए, क्योंकि बस मेरा इतना था कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे मम्मी पापा पसंद करें. आई नेवर लव्ड पढ़ना बिकॉज मतलब नहीं, पर मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी ऑन न्यूरो साइंस, ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, मैंने कॉलेज में आके जितनी भी किताबें पढ़ी है, इट वाज ऑल आउट ऑफ द सिलेबस. ऑफकोर्स मेरे सिलेबस में ही है बिकॉज आई एम लाइक अ MBA स्टूडेंट. मतलब मेरे सिलेबस में भी थी, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ी थी जो कि मुझे सिलेबस में नहीं थी. जस्ट स्पार्क ऑफ माई क्यूरियोसिटी टू बी लाइक फिल्ड, एंड देन आई जस्ट गेट टू नो कि भाई मतलब फिर मेरे को पता चला कि देयर इज़ अ इंटरनल नीड ऑफ मी टू बी सीन एज अ वैल्यूड और स्मार्ट पीपल इन द सोसाइटी. क्योंकि जब तुम्हारे अच्छे परसेंटेज आते हैं ना, तब तुम्हें लोग ना मतलब मार्क्स कितने वो है लाइक सोसाइटी में. अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए ना तो मैं अच्छी लड़की हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ. मतलब दैट्स काइंड ऑफ सिक कि अगर कोई एक है लड़का जो कि बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, मारम मारी करता है, एंड ही डोंट हैव एथिक्स, ही डजंट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, और फिर भी वो अच्छे मार्क्स आता है, तो देन ही इज लाइक अच्छा बच्चा. सो देयर इज सो मच कनेक्शन विथ मार्क्स, क्योंकि हमेशा से हमें कंपेयर किया गया है. छोटी थी तब मैं लाइक फ्रेंड के अच्छा है, तेरे कैसे अच्छे नहीं आए, शी डोंट ब्ला ब्ला ब्ला. सो टू बी ऑनेस्ट, नेक्स्ट जनरेशन को कभी जेन ज़ी ऐसा ट्रीट नहीं करेगी, होप सो. पर हाँ, आफ्टर आई कमिंग टू द कॉलेज आई गेट द लॉट ऑफ नॉलेज विच आई लाइक, एंड आई वाज सो हैप्पी. मतलब मुझे कभी ना कभी ऐसा लगता ज़रूर है कि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्थी और वैलिडेटेड फील करने के लिए मैंने बहुत सारा टाइम उसमें ले लिया 80% लाने में, ताकि मैं बस जस्ट बट देयर इज़ अ वन गोल इन माई लाइफ. आई जस्ट नीड 80% इन माई 12th स्टैंडर्ड, व्हाटएवर हैपन्स. मुझे बस चाहिए थे, मैंने ला दिए. बट चलो गोल कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे कभी लाइक इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिले ना. हाँ, मैं हो गई यार, मेरे को मेरे समाज वालों ने मेरे को अवार्ड भी दे दिया, ठीक है, गुड. बट नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इज टाइम. I love to give my time to the people I love the most, my sister, my friends, my family. The only important thing I have in my life right now, which is not study, not marks, it's my time, and I wanted to give my time on reading a lot, because I don't know why, I just love to read. Everyone have that internal belief in themselves that so I feel like
as much as I read more now, as much as I feel like I'm not growing, but I'm breaking the beliefs that I had with me, which I never even acknowledged it. मतलब ऐसी कितनी सारी बातें हैं मेरे में जो कि मैं कर रही हूँ, मेरे कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है ये सब मेरे बिलीव्स के अलाइन हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता भी नहीं है. जैसे कि आई एम वेरी कैमरा शाय पर्सन इन पब्लिक, ठीक है. तो ये एक बात मुझे पता है, इसलिए मैं उस चीज़ पे काम कर सकती हूँ कि अगर मुझे आई हैव टू बी लाइक नॉट कैमरा शाय पर्सन इन अ पब्लिक, देन आई हैव टू वर्क ऑन दैट. दिस इज़ अ बेसिक थिंग. लेकिन ऐसे कितने सारे ऐसे बिलीव्स हैं मेरे अंदर जो कि मुझे पता ही नहीं है दैट आई हैव टू वर्क ऑन. मतलब ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं दैट आई हैव टू वर्क ऑन. हो सकती है ना, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, आई एम नेवर कंसिडर माई सेल्फ एज अ परफेक्ट पर्सन. जैसे कितनी सारे बिलीव्स है जो मेरे अंदर है जो मुझे ग्रो करने से रोक रहे हैं. तो मेरे को तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि बुक्स इज़ द ओनली वे दैट यू कैन ग्रो योर सेल्फ. और ग्रोथ का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि यू हैव बेटर रिलेशनशिप. मतलब मेरे और मॉम की रिलेशनशिप पहले ठीक नहीं थी. मतलब ठीक नहीं थी का मतलब है कि आई वाज समवन हु लव टू टॉक, ठीक है, और शी इज समवन बेसिकली डिडंट लिसन टू मी. एंड उसकी वजह से ना मम्मी जब ऑफिस से घर पे आती थी, आई फील लाइक कि लेट मी जस्ट बता दूँ मैंने स्कूल में क्या किया, ट्यूशन में किया, एवरीथिंग, बट शी डजंट गिव मी लाइक अटेंशन और शी डजंट इवन लिसन टू मी. सो आई वाज लाइक this is something which makes me hurt because the only person I love is my mom and everything I just tell her, okay, so she doesn't listen to me. So I'm just hurt by that thing a lot. So I've just tried to figure out how to fix it. I stopped telling her whatever happens and I had this, because of that I'm accepting that I have the victimious personality. मीन्स कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी गलत होता है, सो आई एम द वन जिसकी वजह से हुआ होगा. मतलब ऐसा हुआ था, सिचुएशन था देर आई टॉकिंग अ लॉट और उसकी वजह से मम्मी डजंट लिसन टू मी. तो आई टेल माई सेल्फ, मैंने मेरे खुद को ऐसा बोला कि मैं ही ज़्यादा बोल रही हूँ. मतलब वो थक हार के ऑफिस से आई है, मैं ही ज़्यादा बोल रही हूँ. आई वाज लाइक ओके फाइन, आई एम नॉट गोना टॉक टू हर. अब ऐसा कुछ नहीं है कि रिलेशनशिप करो, नहीं ऐसा नहीं है, बट आई मेक श्योर कि वो थक गई है. लेट मी गिव हर वाटर, लेट मी मेक अ टी फॉर हर, फिर हम बात करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व. वो सामने से ही मेरे से पूछती है लाइक हाउ वाज द डे एंड ऑल. सो आई थिंक जब मैं छोटी थी तो मेरा एक ही था कि कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, अगर वो मेरे को हर्ट दे रहा है, मैं दुखी हो रही हूँ, बात पूरी. उससे आगे कुछ बढ़ता ही नहीं. बट व्हेन आई हैड दिस एनालिटिकल थॉट पैटर्न इन मी कि कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा ओके, तो व्हाट आर द वेज यू कैन सॉल्व इट, हाउ मच कंट्रोल you have over that situation, and then I solve it. So it's because of all the books, ठीक है. So I'm a very calm person, ठीक है. अगर कुछ भी होता है, मतलब अभी यही देखो, ये मीशो का पार्सल आया था, ठीक है, तो अभी जो मैंने मंगाया था वो आया ही नहीं है, दूसरा कुछ आया है, ठीक है. उसकी वजह से व्हाई वुड आई टेक स्ट्रेस. रिटर्न वाला बंदा आया, बोल रहा है कि ये तो आ ही नहीं सकता पार्सल में, यू टॉक टू द कंपनी वाले. एंड आई वाज लाइक ओके, आई एम गोइंग टू टॉक टू कंपनी वाला, यू जस्ट गो. एंड उसने मेरे से बहुत बुरी तरीके से बात की. मेरे को बताना है अभी मेरे मॉम को, उसने मेरे को बहुत बुरी तरीके से बात की. लेकिन देखो वो पास्ट है, वो चला गया, ख़त्म है बात. नाउ आई हैव टू लाइक डू व्हाट आई डू, आई हैव टू टॉक टू कैमरा, ओके, एंड वर्क. दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू. Forget about the bad things happen to you, only acknowledge the good things, ठीक. So I'm a very like calm person. कुछ भी situation happen होती है, okay fine, this could happen, now this is the past, just forget about it. I feel like I've gained such a good personal respect and personal wealth कि मैं हमेशा काम रहती हूँ. मुझे अच्छा लगता है काम रहना. मतलब मैं जो मेरा जो नहीं है चिड़िया वो मुझे नहीं पसंद. आई वुड लव टू लाइक टॉक फॉर लाइक 2 to 3 hours calmly. That's such a good thing. Another thing, another quality I have is
yeah, the calmness. And another second thing which I've like, mm, it's kind of like दो बातें हैं. एक ऐसा है कि मैं कुछ भी होता है ना मेरे लाइफ में, मतलब कोई किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया, ठीक है, दैट आई हर्ट, तो मेरे विक्टिमियस पर्सनालिटी मेरी होने की वजह से मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, ठीक है. उसकी वजह से मैं सामने वाले को कभी उल्टा जवाब नहीं, लाइक आई नेवर, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं सामने वाले को बोल सकती हूँ कि आई दिस यू हैव, दैट्स व्हाई यू आर टेलिंग मी लाइक दिस. लेकिन आई अवॉइड, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, कि मुझे सामने जवाब देना ही नहीं पसंद. मेरा सिर्फ सामने जवाब देने का तब होता है जब मुझे एक्सट्रीम लेवल का बुरा लग जाता है, तब भी मैं सामने जवाब देती हूँ. बाकी सामने उल्टा जवाब नहीं देते हम. मैं बहुत काम हूँ, मुझे ना सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है. उठती हूँ सुबह, फिर मैं मेरा ब्रेकफास्ट करती हूँ मेरी फैमिली के साथ, मैं मेरा वर्कआउट मेडिटेशन करती हूँ, फिर मैं मेरा काम करती हूँ, और बस मैं मेरा काम करती हूँ. मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, मुझे मैं भी बहुत पसंद है, मुझे मेरे साथ रहना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं So this is how my life is. To be honest, 20 years old honey, she loving her life. I feel like I have so much burden on me to always take the right decision. Once in a life, I have to give myself a space and time where I just want to take only bad decision. You know, अभी तक मेरे सारे right decision हैं, मैंने कुछ कांड ही नहीं किया मैंने. तो I'm gonna take a very bad decision, only bad decisions for the life. लो भाई, बैड डिसीजन लिया तो कर लो यार. आई लिव इन अ लाइफ विथ ओनली गुड डिसीजन, राइट डिसीजन. विल गोना गिव अ वंस इन अ वाइल. ओके, सो दिस इज अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट. और या आई एम काम एंड नॉट लाइक सामने जवाब नहीं देते. Another thing which I really wants to learn कि मेरे को ना वो चाहिए यार, मतलब नहीं कि सालों तक तुम किसी चीज़ के ऊपर काम करने लगते हो और फिर जब रिजल्ट मिलता है तो ये लाइक, मतलब देखो, मेरी ना जो इन्फॉर्मेशन वाला जो है ना, उसमें मेरा रील्स ही है, ठीक है. रील्स में ऐसा होता है कि तुम्हें डिसिप्लिन लाइफ थोड़ी होती है, यू हैव टू you have to घूमिंग फिरिंग, have a nice life, blah blah blah. This is the one set of information I have from the reels. Another thing, I want a really good amount of information on like something कि कोई बंदा या बंदी है जो कि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, मतलब लाइक 5-6 साल उसने डिसिप्लिन में लगा दिए कि 5-6 साल तक यही रूटीन, यही खाना, यही चीज़. इट्स लाइक तपस्या डूड. आई नीड टू रीड बुक्स ऑन तपस्या, कि लोग 5-5, 10-10 साल तक तपस्या कर रहे हैं कि फॉर टू जस्ट गेट दैट वन गोल, ठीक है. आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज समथिंग विच इज यू नो लाइक डैम मैन, कि तुमने कर दिया, दैट्स काइंड ऑफ तपस्या. आई जस्ट रियली नीड टू रीड बुक्स ऑन तपस्या, कि व्हाट इज तपस्या, कि तुम दे रहे हो भाई अपना टाइम ऑन गोल, प्योर फोकस, प्योर पैशन, एंड देन जस्ट मैंने बोले कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जस्ट डू मैन. पता नहीं मैं एकदम ऐसे स्लैंग में क्यों बात कर रही हूँ, आई एम सॉरी, बट या दिस इज फॉर द वीडियो. डू सब्सक्राइब. आई एम गोइंग टू लाइक कम ऑन दिस चैनल फ्रीक्वेंटली, बिकॉज अब मेरा दूसरी चैनल पर काम चल रहा है. मैं रोज़ पोस्ट कर रही हूँ उस चैनल पे. मैं चाहती हूँ मेरी चैनल ग्रो हो जाए. मैं कभी कभी मैं बता दूँगी उस चैनल पे ज़रा है वो दिस चैनल ऑल्सो, कि मैं उसके ऊपर, मतलब दिस चैनल इज़ ओनली फॉर लाइक कनेक्शन टू द ऑडियंस, लाइक यू गाइस आर, मतलब दिस ओनली चैनल इज़ फॉर लाइक अ कनेक्शन टू द ऑडियंस. दिस इज़ फॉर द मेजर चैनल, a major video we puts there, ठीक है. So yeah, I hope you guys like this video. Do subscribe, and I put a really good amount of content on my second channel. I'm gonna put the link down there if you just wanted to check out that channel. Thank you so much. And yeah, this is a channel just because we're like
me and you guys. That's it. Thank you so much for watching. We're gonna meet in another video if I really want to talk about something or anything. Till then, bye.